Greetings of the day, dear students. In today's video, we are going to study a beautiful poem written by Maya Angelou. The title of the poem is Woman Work. Let me tell you something about the great writer Maya Angelou first. Maya Angelou, who was born in 1928, was an American poet, actress and civil rights activist. ये बहुत फेमस हीरोइन भी रही हैं अपने ज़माने में. She faced a difficult childhood marked by trauma and displacement. इनके चाइल्डहुड में इन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया. इनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई जिनकी वजह से इनकी राइटिंग्स पे भी इम्पैक्ट आया. Despite these challenges, she became a prolific writer and influential figure. इन challenges के होते हुए भी ये बहुत famous writer बनी. Angelou is best known for her series of 7 autobiographies, the first of which, I Know Why the Caged Bird Sings, brought her international recognition. इनका एक famous work था I Know Why the Caged Bird Sings. इसकी वजह से इनको बहुत popularity मिली. The book details her early life. इनकी ये जो बुक है इसमें इनका खुद की ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें रेसिज्म, सेक्सुअल अब्यूज़, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और इनका सेल्फ एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. इन एडिशन टू हर ऑटोबायोग्राफीज, एंजेल्यू पब्लिश्ड सेवरल पोइट्री कलेक्शंस ऑल्सो. और इनका एक बहुत फेमस सा किस्सा भी है. इन्होंने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का जब 1993 में इनाग्रेशन हुआ तब इन्होंने इनाग्रल पोएम पढ़ी थी वहाँ पर, ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग. तो दैट वाज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन हर लाइफ. Beyond her literary achievements, Angelou was an active participant in the civil rights movement, and her work consistently addressed themes of social justice, identity, and human condition. Angelou's legacy extends beyond literature. She was a cultural icon and an advocate for women's rights, रेशियल इक्वालिटी एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम. इनका जो एक लाइन में अगर हम सम अप करें तो इनका जो वर्क था वो इंस्पिरेशन है सभी रीडर्स के लिए. इन्होंने विमेन राइट्स के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, आइडेंटिटी के लिए बहुत कुछ लिखा जो कि एक सोशल वर्कर भी हमें बताता है कि ये थी बहुत अच्छी. इसके बाद लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट वुमेन वर्क, जो पोएम आपके सिलेबस में दी हुई है. वुमेन वर्क इज़ अ पावरफुल पोएम बाय एंजेल्यू. This poem captures the daily life and struggles of a woman, particularly a black woman, in a domestic setting. इसमें एक black woman के जो daily life के struggles हैं, जो monotonous life है उसकी, जो एक पूरा दिन एक औरत घर के काम करती रहती है, एक boring सा lifestyle रहता है, सुबह से शाम तक वही सारे काम, घर साफ करना, बच्चों को संभालना, बीमारों की सेवा करना. तो एक औरत की ज़िंदगी में यही सब है. इस पोएम में यही सब थीम्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. This poem portrays the relentless labor that defines the woman's day-to-day existence, from taking care of children to household chores. Through vivid imagery and rhythmic structure, Angelou contrasts the physical demands of domestic work with the woman's yearning for escape and connection with nature. और लास्ट में एक औरत का escape कैसे होता है, कैसे वो बच जाती है इन चीज़ों से, कैसे वो अपने सपनों की तरफ जाती है. तो केवल एक ही escape है औरत का, एक ही एक रेस्क्यू प्लेस है औरत का, नेचर. वो नेचर में जाकर ही अच्छा फील करती है. The poem highlights theme of resilience, the burdens of gender roles, and the desire for freedom and peace. Angelou's depiction resonates deeply with the experience of many women. ये हर औरत के लिए एक एग्जाम्पल है. जो पोएम है हर औरत की कहानी हमें पता लगती है इस पोएम के थ्रू. एंड इट इज़ अ poignant reflection on the intersections of race, gender and labor. Now let us take up the stanza wise explanation of this poem. Let's read out stanza 1 first. I have got the children to tend, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop, then the chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I have got the shirts to press, the tots to dress, the cane to be cut. I got to clean up this hut, and then see about the sick and the cotton to pick. इसमें पूरे स्टेंजा में हमें एक औरत जो पूरा दिन काम करती है उन कामों की एक लिस्ट देखने को मिलेगी. इसमें सबसे पहले आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड,
इसका मतलब एक औरत सबसे पहले उठते ही क्या करती है, अपने बच्चों की देखभाल, टेंड होता है देखभाल करना, शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, देन द क्लोथ्स टू मेंड, मेंड मीन्स टू रिपेयर द क्लोथ्स, टू पैच अप द क्लोथ्स, कि अगर कोई कपड़े आपके फट गए हैं तो उनकी रिपेयर करना, उनको सीलना एक औरत का काम है। द फ्लोर टू मॉप, मॉप मीन्स क्लीन, अपने फ्लोर की फर्श की सफाई करना भी औरत का काम है। द फूड टू शॉप, खाना बाजार से लेके आना है, कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो वो भी औरत करती है। देन द चिकन टू फ्राई, उस खाने को बनाती भी लेडी है। द बेबी टू ड्राई, छोटे बच्चे को नहलाना, उसको पोंछना, उसको सुखाना औरत का काम है। आई गॉट द कंपनी टू फीड, कंपनी हेयर मीन्स गेस्ट, जो गेस्ट घर में आ रहे हैं उनको फीड करना, उनको खाना खिलाना भी औरत का काम है, उनकी गेस्ट का वेलकम करना। द गार्डन टू वीड, गार्डन में कोई अगर वीड्स हैं, खरपतवार है, घास वगैरह उग गई है एक्स्ट्रा, तो उसको भी एक औरत ही ठीक ठाक करती है। आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस, अपने जो कपड़े हैं आपके वो भी आयरन एक औरत ही करती है। द टॉट्स टू ड्रेस, टॉट्स मीन्स इन्फेंट, छोटे छोटे बच्चों को कपड़े पहनाने का काम भी लेडी का है। द केन टू बी कट, केन मीन्स शुगर केन या बैम्बू, इनका जो खेत में काम जो लेडी करती है शुगर केन को काटने का, फसलों को काटने का, तो वो भी औरत के हिस्से में आया। आई गॉट अ क्लीन अप दिस हट, वो अपनी झोपड़ी को, अपने घर को साफ करने का काम करती है। देन सी अबाउट द सिक, जो बीमार लोग हैं घर में उनकी देखभाल भी लेडी कर रही है। एंड द कॉटन टू पिक, तो खेत में जो कॉटन बॉल्स हैं उनको पिक करने का काम भी एक लेडी ही करती है। In the first stanza, the speaker lists an exhausting series of chores. एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें औरत थक जाती है काम कर करके, emphasizing the overwhelming nature of her domestic responsibilities. The tasks range from tending to children, mending clothes, cooking to weeding the garden, picking cotton. This stanza highlights the unending, जो ख़त्म ही नहीं होते काम, repetitive nature of the work, एक जैसे काम जो रोज़ करने होते हैं, and how it consumes her entire day, और किस तरीके से औरत का पूरा दिन इन काम करते करते चला जाता है। The use of a continuous, almost breathless rhythm mirrors the relentless pace of her duties, underscoring the physical and emotional toll they take on her. और इन कामों की वजह से एक औरत का फिजिकल हेल्थ, उसका इमोशनल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होता है। Now the second stanza. Shine on me sunshine, rain on me rain, fall softly dewdrops and cool my brow again. Now the lady yearns for the nature's things, वो चाहती है कि प्रकृति की गोद में ही जाके उसको आराम मिलेगा। अब वो अपने बहुत सारे काम करके थक चुकी है। नाउ शी सेज कि जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, सनशाइन, रेन, ड्यू ड्रॉप्स, इनकी वजह से शायद उसको कुछ राहत मिल सकती है। शी सेज शाइन ऑन मी सनशाइन, कि सूरज तुम मेरे ऊपर आके शाइन करो, बारिश की बूंदें मेरे ऊपर बरसो। ड्यू ड्रॉप्स मीन्स ओस की बूंदें, कि मेरे जो चेहरा है उसके ऊपर ओस की बूंदें बहुत सॉफ्टली गिरें, ताकि मेरा जो ब्रो है, मेरा जो माथा है, वो उसमें ठंडक मिल सके, उसको जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है रोज़ रोज़ काम करके, उन टेंशन से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। In this stanza, the speaker shifts her focus from her exhausting tasks to the natural world, seeking solace and relief. अब वो पहले स्टेंजा में हमने देखा था कि औरत कितने काम कर रही है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक औरत को रिलीफ मिलता है in the company of nature. The tone becomes more gentle and soothing in these lines. It represents the woman's yearning, yearning का मतलब desire, for respite, respite का मतलब rest, and connection with nature, which serves as a refuge from her burdens. Nature में जाके ही एक औरत को उसके burden से थोड़ा सा relief मिलेगा, refuge मिलेगा. Now stanza 3. Storm, blow me from here with your fiercest wind, let me float across the sky till I can rest again. Now the lady, she continues to seek escape from her laborious life. वो अभी भी एक नेचर की तरफ जाना चाहती है। वो एक स्टॉर्म को कहती है, एक तूफ़ान को कहती है कि वो उसको उड़ा के ले जाए ऐसी जगह जहाँ उसे शांति मिल सके। वो चाहती है कि वो फ्लोट करे आसमान में, और ताकि वो रेस्ट कर पाए कुछ देर तक। The speaker continues to seek escape from her daily monotonous life. She calls upon the storm,
asking it to blow her away with its strongest winds so she can drift through the sky, she can float through the sky and find rest. The imagery of floating and resting suggests a desire to be free from the constraints of her daily responsibilities. देखो, एक तैरना हवा में अपने आप में ये एक आराम का सूचक है, सिंबॉलिक है कि एक रेस्ट मिल रहा है एक लेडी को. The storm typically associated with chaos and destruction. Usually हम मानते हैं कि तूफान से एक तबाही आती है, लेकिन यहाँ पर तूफान एक लिबरेटिंग फोर्स है. वो एक लेडी को आज़ादी दे रहा है, उसको डेली लाइफ से उड़ा कर ले जा रहा है. उसको जब डेली लाइफ के जो काम करने होते हैं, जो एक टेंशन है, तूफान उसको उड़ा के एक आराम वाली जगह में ले जा रहा है. Now stanza 4. Fall gently, snowflakes. Cover me with white, cold, icy kisses and let me rest tonight. यहाँ पर एक लेडी अपील करती है स्नोफ्लेक्स की, जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे. आस्किंग देम टू कवर हर, वो चाहती है कि बर्फ़ के टुकड़े उसको पूरा कवर कर दें और उसको बहुत कामनेस महसूस हो, उसको बहुत एक आराम मिले. कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस, कि वो पूरी की पूरी बर्फ़ से ढक जाए और बिल्कुल उसको एक राहत मिले, रिलीफ मिले. एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, लेडी का एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि वो बिल्कुल एक शांति से सो पाए. Here, the speaker appeals to the snowflakes, asking them to cover her and bring her a sense of calm and stillness. The imagery of cold, icy kisses and being covered in white evokes a feeling of tranquility and peace. The speaker longs for rest. वो चाहती कि वो एक बहुत अच्छा आराम करे. और यहाँ पर हमें दिख रही है her deep need of relief from the constant demands of her life. Now, the last stanza. Sun, rain, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, star shine, moon glow, you are all that I can call my own. अब जो लेडी है वो कहती है कि जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, सन, रेन, स्काई, माउंटेन्स, ओशन, स्टार्स, मून, यही सारे उसके अपने हैं. शी फील्स ट्रूली बिलोंग टू हर, उसको लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं दैट ट्रूली बिलोंग्स टू हर. This connection to the natural world contrasts with the earlier depiction of her endless domestic labor. नेचर में ही उसको लगता है कि एक प्योरिटी है और वो क्लेम करती है कि यही सारी चीज़ें उसकी अपनी हैं. The stanza suggests that despite the hardships she faces, she finds solace and a sense of ownership in the natural world. उसको चाहे कितने भी काम करने पड़े लाइफ में, लेकिन जो आराम है, जो रिलीफ है, वो उसको नेचर की कंपनी में ही मिलता है. ओवरऑल थीम्स ऑफ दिस पोएम. वुमन वर्क एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लेबर, जो एक काम करना, हार्ड वर्क, जेंडर रोल्स, कि एक सारा काम लेडी के हिस्से में ही आ रहा है. एंड द डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड पीस, और जो लेडी की एक डिज़ायर है, इच्छा है एक मुक्ति की, आज़ादी की और शांति की. द पोएम juxtaposes होता है मिक्स करना, द एग्जॉस्टिंग डिमांड्स ऑफ डोमेस्टिक लाइफ विद द स्पीकर्स डीप यर्निंग फॉर कनेक्शन विद नेचर. इसमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं. पहला कि वो कितने काम कर रही है अपने डेली लाइफ में, और दूसरा कि वो एक नेचर की कंपनी में जाके आराम करना चाहती है. हाईलाइटिंग द स्ट्रगल फॉर बैलेंस, तभी उसकी लाइफ में बैलेंस बनेगा. एंड द सर्च फॉर पर्सनल स्पेस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीसफुल जिंदगी अमिड्स ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा रहती है एक शांति की खोज करने की, और वो शांति उसको मिलती है नेचर में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम वुमन वर्क. आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.